Now students, let us we study about the some important characteristic about the equipotential surface. Right? Now the first characteristic या properties of the equipotential surface is no work is done in moving a test charge over an equipotential surface. इसका मीनिंग स्टूडेंट्स कि there is not work done for moving the test charge in a equipotential surface. इसका मीनिंग कि total work done is going to zero for the equipotential surface. ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है. Let us we take the understand briefly. Let us we consider it is the equipotential surface and there is the 2 point A and B, right? And there is the direction of electric field. And the charge particle is a small charge particle is moving from A to B, right? So there is the work done between points A to B. So work is equivalent to the students, the charge into potential difference, right? Charge into potential difference. Okay, let us we consider the potential at point B, VB, and potential at point A is the VA. Clear? तो ये फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ. सो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस में Q इनटू VB माइनस VA. एंड स्टूडेंट्स, इट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है. मीन्स यहाँ पे VB इज इक्वल टू VA. यहाँ पे अगर ये भी 2 वोल्ट है तो ये भी 2 वोल्ट होगा बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. सो वर्क डन AB is equal to Q into 0 because ये दोनों इक्वल है. So total amount of work done is 0, right? So anyway there is the not work done into the equipotential surface for moving the charge from one point to other point. Clear? Okay, next characteristic, the second one, electric field is always normal to the equipotential surface. EPS means students equipotential surface at every point. At every point, right? So the direction of electric field is always normal to the equipotential surface, right? Means perpendicular होगा. स्टूडेंट्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. So now let us we consider there is the direction of electric field जो हमको फाइंड आउट करना है, right? It is the equipotential surface. Clear? Okay, now there is the point A and there is the point B. The charge is moving from A to B. Okay, so there is the work done in terms of electric field. Electric field students यहाँ पे present है. So हम लोग उसका definition ये भी लिख सकते हैं, work is equivalent to the E into Q, right? Force into displacement. E into Q into displacement. ये displacement कितना हो रहा है students? So DL, right? Let us यहाँ से यहाँ अगर वो जो movement हो रहा है, let us हम लोग consider there is a small displacement DL. Clear? So ये students definition यही लिखा, work is equivalent to the force into displacement, and force की जगह पे students मैंने EQ लिखा. Clear? Okay, now हमने आगे के कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो रहा है स्टूडेंट, 0, राइट? सो 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, E इंटू क्यू इंटू DL इंटू कॉस थीटा, राइट? सो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0. सो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस थीटा 0 कहाँ पे होता है स्टूडेंट? सो थीटा इज इक्विवेलेंट टू द π/2 और 90 डिग्री, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टूडेंट्स एनी हाउ डायरेक्शन क्या मिला मुझे,
90 डिग्री, राइट. थीटा इज इक्विवेलेंट टू द 90 डिग्री जो हमको मिला, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये जो मैंने यहाँ पे जीरो किया, सो वेयर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट. ये खाली हम लोग कॉस थीटा जीरो बता रहे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जीरो कहाँ पे हो सकता है, तो एग्जैक्टली विच इज इक्वल टू π/2 और 90 डिग्री, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, विच इज ऑलवेज नॉर्मल, which is always normal to the equipotential surface, to the equipotential surface. Clear? π/2 आया स्टूडेंट्स, मीन्स परपेंडिकुलर. सो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस ये कंसिडर कर रहे हो, राइट, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस, परपेंडिकुलर. ये अगर मैं सरफेस कंसिडर करूँ, so that is the direction of electric field normal towards the surface. Clear? Okay. Now students, third characteristic is the equipotential surface are closer together in a region of strong electric field, in a region of strong electric field means field, and farther apart means जैसे वो दूर जा रहा है, in a region of weak field. Right? Let us we understand the meaning of this statement. We derive the relation between electric field and the electric potential. So electric potential is equivalent to the minus dV by dl. Right? So ये माइनस साइन स्टूडेंट्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि समझ लो अगर यहाँ पे हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, राइट, हमने जो लास्ट थियरी में देखा था, तो समझ लो स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 में कंसीडर कर रहा हूँ, एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? ओके. और ये 2 के लिए हमने कंसीडर किया है V प्लस डेल्टा V, पोटेंशियल ज़्यादा है, और ये जो है लो पोटेंशियल मीन्स V है. सो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं लो पोटेंशियल, राइट, एंड ये जो है वो हाई पोटेंशियल है. ओके. और डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स जो हमने कंसीडर किया था वो dl कंसीडर किया था, राइट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, इतना हमने कंसीडर किया था, राइट. सो ये देखो ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर मीन्स पॉइंट 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हो तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाई पोटेंशियल हो रहा है, एंड इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, राइट, वो कैसा हो रहा है, वीक हो रहा है, बिकॉज उससे उसकी अगेंस्ट है ना, उसकी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉर्मल टूवर्ड्स द सरफेस. अगर हम लोग मीन्स अगेंस्ट में जाएंगे, राइट, इफ वी मूव अगेंस्ट electric field, right, then the potential is going to strong, and if we move in same direction of electric field, then the potential is weak, means low potential. अगर हम लोग ये ही डायरेक्शन में मूव करे तो पोटेंशियल स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, लो. समझ लो लो पोटेंशियल मीन स्टूडेंट्स ये 2 वोल्ट है और समझ लो ये 3 वोल्ट है. तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट 2 से 1 की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे कितना वोल्ट मिल रहा है, 2, और वही डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की. अगर मैं 1 से 2 आ रहा हूँ तो मुझे पोटेंशियल बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में हूँ.
सो ये आपको ये ध्यान रखना है। ये जो सारी कंडीशन है स्टूडेंट्स वो किसके लिए, फॉर द पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना, बिकॉज हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो पुट आउट किया है। नेगेटिव के लिए पूरा उल्टा हो जाएगा, राइट। नेगेटिव के लिए ये जो पूरी कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मीन्स इन दोनों को मैं बहुत पास में रख रहा हूँ, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर दोनों को पास में रख रहा हूँ, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, राइट, क्योंकि ये दोनों बहुत पास में, राइट। तो पोटेंशियल क्या होगा, मीन्स पोटेंशियल जो है वो भी स्ट्रांग होगा। एंड जो अगर मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा दूर ले रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज हमने इसको कंसीडर क्या किया है, नीचे वाले को हाई कंसीडर किया है, ऊपर वाले को क्या किया है, लो। तो जो लो पोटेंशियल है वो मीन्स दूर जा रहा है। क्लियर। सो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड वन। एंड नो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन intersect each other, मीन्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइन जो होती है वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इफ दे आर इंटरसेक्ट, समझ लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट, अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, अगर मीन्स ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है तो दोनों की जो वैल्यू है देन देयर विल बी ए टू वैल्यू। अगर ऐसा हो रहा है सो देन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टू वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज जैसे ही इंटरसेक्ट करेगा मीन्स उसको टच करेगा, सो देयर विल बी चेंज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर दिस वर्टाइस। अगर ये चेंज हो गया, समझ लो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पूरा 2 वोल्ट है, अगर जैसे ही लाइन इंटरसेक्ट किया मीन्स यहाँ पे उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ, मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो गया। चेंज हो गया तो इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकते। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर करेगी तो वो हर एक वर्टाइस का जो इक्विपोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। दैट इज द टू वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर। सो स्टूडेंट्स इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक ये फॉर द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपको ध्यान रखनी है।